Good afternoon, all dear students. Today I am going to teach you lesson number 8, metallurgy. Topic to be covered in these lessons are physical property of metal, chemical property of metal, chemical properties of non-metals, metallurgy, various concepts, physical property of non-metals and reactivity series of metals and ionic compound. So students, Earth was born about 4.5 billion years ago. You know that about various formative processes have been taking place in the core of the Earth and its surroundings since its creation till today. This have resulted in the formation of various ores and liquid and gases. जब 4.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ बॉर्न हुआ तब क्या हुआ, बहुत सारे जो सराउंडिंग थे उसमें चेंजेस हो गए, बहुत सारे क्रिएशंस हुए, फिर ओरल्स लिक्विड गैसेस क्या हुए, फॉर्म हुए. तो विच मेथड डू वी यूज़ व्हेन वी वांट टू स्टडी मेनी थिंग्स टुगेदर एंड एट द सेम टाइम्स. तो हमें कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए. द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ some of the other elements or their compounds. In the beginning, elements were classified in the accordance with their chemical and physical properties into the types method: metals, non-metals and metalloids. And these are the use even today. You have studied their characteristic in the last standard. We are going to get more information about them in this lesson. तो अभी हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें इस लेसन में लेना है कि ये जो सराउंडिंग है जैसे क्रिएट हुआ है, तो क्रिएट होने के बाद जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना है. मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटलॉइड्स क्या है, उनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सब हमें इस लेसन में क्या करना है, स्टडी करना है. जैसे कि जो एलिमेंट्स और कंपाउंड जो सब्सटेंस है हमारे आजू बाजू में वो कैसे फॉर्म हुए हैं, तो उनका क्लासीफाई करके हमें उसका क्या करना है, सब प्रॉपर्टीज़ और जो टाइप्स है वो हमें स्टडी करना है. तो देखो, कैन यू टेल मी स्टूडेंट व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज, मेटल क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है. एक्सेप्शनल मर्क्यूरी एंड गैलियम जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं. ठीक है. एंड द टिपिकल लस्टर्स, ये टिपिकल लस्टर्स होते हैं. मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी होती है इनका एक प्रॉपर्टी. हार्डनेस होता है, एक्सेप्शनल लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. ठीक है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. On the other hand, the melting and boiling point of the metal, sodium, potassium and mercury and gallium are very low. Okay. तो सोनरस होता है और एंड प्रोड्यूस साउंड ऑन स्टिकिंग ए हार्ड सरफेस, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में देखेंगे, गैसेस और सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शनल ब्रोमियम इन लिक्विड स्टेट, lack of any typical lusters, exceptional iodine and diamond, brittleness in the solid state, exceptional diamond is the hardest natural substance, bad conductor of heat and electricity, exceptional graphites. Diamond is good conductor of heat and low melting and boiling point. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे, मेटल एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट, ज़्यादा करके मेटल सॉलिड स्टेट में ही होते हैं. द मेटल नेमली मर्क्यूरी एंड गैलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. जो मर्क्यूरी और गैलियम होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर में. बाकी के जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पोजेस लस्टर. The metallic luster go on decreasing due to exposed to atmospheric oxygen and moisture, and also in presence of some reactive gases. We know that metals have the property namely ductility and malleability. Similarly, all metal are good conductor of heat and electricity. मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड,
However, the alkali metals from group 1 such as lithium, sodium and potassium are exceptional. These metals can be cut with knife as they are very soft. Metals have high melting and boiling point. For example, tungsten metals has the highest melting point 3422 degrees Celsius. On the contrary, the melting and boiling point of the metal such as sodium, potassium, mercury, gallium are very low. A sound is produced when certain metals are stuck. A sound is produced when certain metals are stuck. This called the sonority. जो साउंड आता है उसको सोनोरिटी कहेंगे जिस मेटल से. दिस मेटल्स आर नोन एज अ सोनोरस मेटल्स. ओके, अभी ये जो मेटल्स होते हैं उनके नॉन मेटल्स होते हैं उनके हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल. अभी मेटल के बारे में मेटल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई. अभी नॉन मेटल्स. When properties of non-metal are considered, it is found that some non-metals are in solid state while some are in gaseous state. Exception is the non-metal bromine which exists in liquid state. Non-metal do not possess luster, but iodine is an exception as its crystals are shiny. Non-metal are not hard. Diamond, which as an allotropes of carbon, is the exception. Diamond is the hardest natural substance. Non-metals have low melting and boiling point. Non-metal are bad conductor of electricity and heat. Graphites and allotropes of carbon is an exception as it good conductor of electricity. ठीक है स्टूडेंट. नाउ अभी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम मेटल्स के. तो मेटल्स आर रिएक्टिव, दे लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली and become positively charged ion. That is why metals are called electropositive elements. इसलिए metals को electropositive elements कहा जाता है. तो do you know students, substance which are good conductor of heat are usually good conductor of electricity as well. Similarly, bad conductor of heat are also bad conductor of electricity. The exception is the diamonds, which is bad conductor of electricity but good conductor of heat. ठीक है. तो you should try this activity students. Apparatus, pair of tongues or spatula, knife or burner. Chemical, samples of aluminium, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. Use sodium carefully in presence of teachers. Procedure. Hold the sample of each of the above metal at the top of the frame of the burner with the help of pair of tongues on spatula. Which metal catches fire readily? The answer of this question is sodium metal catches fire easily. How does surface of metal appear on catching fire? This surface of the metal appear blackish on catching fire. What is the color of the frame while the metal is burning on the frame? When metal burn in the frame turns blue. Okay. नाउ रिएक्शंस ऑफ मेटल. मेटल के रिएक्शन है. फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जो मेटल का रिएक्शन होता है वो देखेंगे. जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, जब हम हीट देते हैं ऑन हीटिंग इन एयर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म, तो क्या फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है. सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल. Sodium metal combined with oxygen in the air even and at room temperature and form sodium oxide. तो रूम टेम्परेचर में भी अगर सोडियम मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सोडियम ऑक्साइड मिलेगा. ठीक है. तो देखो 4Na+ O2 गैस ट्वाइस Na2O हमें ये मिलता है. ठीक है. तो ऑन एक्सपोजर to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. Oxides of some metals are soluble in water. They react with water to form alkali. तो एग्जाम्पल में दिया है Na2O H2O के साथ जब रिएक्ट होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है.
We know that magnesium oxide is formed on burning magnesium ribbon in air. Magnesium oxides react with water to form an alkali called magnesium hydroxide. तो मैग्नीशियम जब ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अल्कली मिलेगा MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी ये जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी ये जो है रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको दिखाती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखिए क्या होता है कि जब कोई मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हम पहले भी एक जो एक्टिविटी है हम इसकी कर चुके हैं कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था बर्नर की हेल्प से, तो उसमें जो इकट्ठी हुई थी, जो ऐश इकट्ठी हुई थी, जो उसकी राख इकट्ठी हुई थी, जब वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना, जब सॉलिड मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब इन्हें हम वाटर में H2O में डिसॉल्व करते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट करता है। अब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। एल्कलाइन मतलब बेसिक इन नेचर होते हैं। जब इनमें हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जब मेटल की रिएक्टिविटी होती है किसी नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। अब जैसे कि सल्फर है, सल्फर जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऐसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है फिर H2O के साथ रिएक्ट करता है और उस फिर H2SO3 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जबकि जो H2SO3 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, यानी कि एसिडिक इन नेचर होता है। जब इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये रेड लिटमस डालने से ब्लू हो जाएगा। अगर H2SO3 की बात करें तो ये ब्लू लिटमस डालने से रेड कलर का हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो मेटल है ये क्या होते हैं, ज्यादातर जो मेटल फॉर्म होती है वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ज्यादातर वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है ना, अब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। मेटल की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन के साथ, कि हम आज करेंगे। अब मेटल की जो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ वो कैसी होती हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सारे मेटल्स हैं। अब जैसे कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, मेटल जब रिएक्ट करेगा। अब ऐसे ही जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 2Mg O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा। ऐसे ही कॉपर अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड क्रिएट करेगा। ठीक है ना, सेम ऐसे ही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस करेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही सोडियम रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या है, जो ऑक्साइड्स जो होते हैं ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो ये एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब कि जब इसमें अगर हम इसका टेस्ट करें, इसमें एक रेड लिटमस डालें तो वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, जो कि डिफाइन करते हैं कि ये जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। अब जैसे कि सोडियम है, सोडियम H4Na जब ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल की सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, यानी मेटल्स लेने हैं उसकी ऑक्सीजन के साथ उन्हें रिएक्ट कराना है। तब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या 2Na2O बनाएगा, यानी कि सोडियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं ना, इनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी इसमें जब वाटर डालते हैं तब ये हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्रिएट कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये बेसिक इन नेचर होते हैं, एल्कलाइन इन नेचर होते हैं।
देख ऐसे ही इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसे ही पोटेशियम के जो 4K जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड क्रिएट करेगा। अब K2O में जब वाटर डालते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रोड्यूस होते हैं। ये इस तरह की रिएक्शन होती है। अब इसके अलावा जो रिएक्टिविटी होती है ना सारे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, वो सेम नहीं होती। ठीक है ना, इक्वली ये सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है ना, उनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना मेटल पे डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उनकी रिएक्टिविटी होती है। जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। कौन से? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। यानी कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 4NaO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2Na2O सोडियम ऑक्साइड क्रिएट करेंगे। पोटेशियम करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड क्रिएट होते हैं। कैल्शियम करता है ऑक्सीजन का तो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिएट होते हैं। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे बहुत ही आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो है ये बहुत ही इजीली क्या होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी होती है। जबकि इनके अलावा अगर हम इन मेटल्स को छोड़ दें, इनके अलावा जो हमारे दूसरे मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम और जिंक, ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते। इनको क्या करते हैं, बर्न करना पड़ता है एयर की प्रेजेंस में। इनको स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है तभी इनकी रिएक्शन होती है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम और जिंक, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कर बनाता है, लेकिन इन्हें इस प्रोसेस के लिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट नहीं कर जाते। ऐसे ही 2Zn जिंक O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2ZnO जिंक ऑक्साइड क्रिएट। ठीक है स्टूडेंट, दिस वॉज अवर टुडेज लेक्चर. आई होप you understood the chemical reaction of metal. Remaining part I will continue on next video. Okay, thank you, bye bye.